Okay, good morning, students. Now it's CG time. Okay, I think Madam she has covered 3 units, first 3 units. So now today we will start with fourth unit. So your fourth, fifth, and sixth, all these 3 units are a theoretical part. So just try to get the concepts so that you can elaborate those concepts in a exam. Okay, your fourth unit जो है that consists of three subparts you can say. That first subpart is related to color models. Second is illumination model, and third one is that is related to something how to detect the face detection. Okay. So in this lecture we are going to cover the color models. Before starting with color models, we will see what is light and what are the properties of light. Because that light plays an important role in color models. Okay. So light. What is light? Light, you can say it is an electromagnetic wave which is defined in terms of wavelength. Okay, it has the unit wavelength. It is a part of electromagnetic spectrum, right? So you can more describe this definition as light. It is a electromagnetic wave which is defined in terms of frequency or wavelength. It is a part of electromagnetic spectrum and that light is perceived by the human eye. Okay. So electromagnetic spectrum, it is a part of electromagnetic spectrum. असं मी का म्हणतीये? कारण there are number of rays which are the part of electromagnetic spectrum. Different types of rays that you have already heard, like gamma rays, right? Then X-rays, then ultraviolet rays, violet rays, then infrareds, microwaves, and radio waves. So light जो है, these are basically nothing but the visible rays that human eye can see. म्हणून त्याला visible rays म्हटले. And this light, it is a part of electromagnetic spectrum. ठीक आहे. म्हणजे ह्याच्यामधलाच एक काहीतरी रेंज असणार आहे आणि ती म्हणजे तुमची लाईट असणार आहे, राईट? सो in between ultraviolet rays and infrareds, in between ultraviolet rays and infrared, ह्याच्यामधला जो काही पोर्शन असेल, these rays are the visible rays, म्हणजेच तुमची लाईट. Visible rays, and that ranges from 400 nanometer to 750 nanometer, right? म्हणजे ह्या रेंज मधले जे काही रेज असतील, those rays are visible rays that can be perceived by the human eye. म्हणजेच these rays are visible to the human eye, right? इथपर्यंत समजतं मी काय सांगितलं ते आता? काय काय पॉइंट सांगितले आतापर्यंत लक्षात आलं? What is light? Light, it is an electromagnetic wave which is defined in terms of wavelength, right? First point, it is a part of electromagnetic spectrum, right? These are the visible rays that ranges from 400 nanometer to 750 nanometer, right? And these rays are present between ultraviolet rays and
इन्फ्रारेड्स. लक्षात येतंय थोडंफार? मी म्हणत नाही थेअरी आहे, थोडंसं तुम्हाला वाटेल पहिल्यांदाच ऐकताय हे, तर एकदा दोनदा वाचल्यानंतर ते वर्ड्स कानावरती पडल्यानंतर तुमच्या थोडंफार लक्षात येईल. मी म्हणत नाही 100% कळायला पाहिजे, पण ऍटलिस्ट थोडंफार तरी वाचताना तुम्हाला वाटलं पाहिजे की हा ठीक आहे, हे असं काहीतरी कन्सेप्ट आहे म्हणून. ओके, इथपर्यंत लक्षात येते? लाईट मध्ये काय काय पॉईंट सांगितले? नाउ लाईट हॅज सम प्रॉपर्टीज दॅट यू हॅव ऑलरेडी हर्ड, लाईक reflection, shadow, refraction, right? So when light falls on the material or an object, it interacts with an object in different ways. Interact होते त्या object बरोबर. म्हणजेच काय? When light falls on an object, that object can emit the light. That is a emission. Object काय करू शकते? Object can emit that light or can absorb the light, that is absorption, or light might bounce off the object, that is reflection. Reflect पण होऊ शकते त्या ऑब्जेक्ट पासून, right? Or that may pass through the object, that is a transmission, refraction. ठीक आहे? सगळं का सांगतेय हे कळेल तुम्हाला. तर लाईट जे असणार आहे, इट प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल ॲज आय सेड इन कलर मॉडेल. कारण कुठल्याही ऑब्जेक्टचा कलर आपल्याला कसा दिसणार आहे? व्हॉट इज द कलर? कलर इज नथिंग but when what the eye see when light is reflected off an object, right? जेव्हा एखाद्या ऑब्जेक्टवर लाईट पडते आणि ती लाईट जेव्हा रिफ्लेक्ट होऊन आपल्या आय मध्ये, तेव्हा आपल्याला जो काही ऑब्जेक्ट दिसणार आहे त्याच्यावर त्या ऑब्जेक्टचा कलर अवलंबून आहे. सो कलर इज what the eye see when the light is reflected off an object. त्याच्यामध्ये अजून एक ऍड करू शकता की जो कलर असणार आहे ऑब्जेक्टचा, सो कलर not only depends upon the wavelength of light. जी लाईट त्याच्यावर पडणार आहे फक्त त्याच्यावरच त्या ऑब्जेक्टचा कलर अवलंबून नाहीये, तर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन what the wavelength is observed by an object, wavelength is absorbed by an object or reflected by the object. ठीक आहे, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की जे लाईट जे असणार आहे इट प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन अ कलर मॉडेल. कारण का? कुठल्याही ऑब्जेक्टचा कलर जो आहे तो कशावर अवलंबून आहे? when it depends upon what wavelength of light is absorbed by an object, wavelength of light is reflected by the object, right? So what is color? Color तुम्ही एकदम सिंपल वर्ड मध्ये सांगू शकता की इट इज what the eye see when the light is reflected of an object. ठीक आहे? हे इथपर्यंत कळतंय का? एनीबडी लक्षात येते थोडंफार? कोणच नाही? काहीच कळत नाहीये काय चाललंय ते? हॅलो? येस मॅम. काय काय सांगितलं मी आतापर्यंत? कोणी एक जण एक्सप्लेन करू शकेल? जे कळलंय ते पॉइंट्स इथं लिहिलेले आहेत, हे बघूनच सांगायचंय. 1-2 मिनिटात पटकन सांगता येईल? नाही? परत एकदा सांगू? फिर से रिपीट करना है? Yes, ma'am. व्हॉट इज लाईट? लाईट मी काय सांगितलं, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. म्हणजे लाईट काय असणार आहे? लाईट इट इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह.
हे डिफरंट टाइप्स ऑफ रेज तर तुम्ही ऐकले असतील, बरोबर आहे. एक्स रेज, गॅमा रेज, इन्फ्रारेड, मायक्रोवेव्ह, रेडिओ वेव्ह, अल्ट्राव्हायोलेट रेज, राईट. तर लाईट जे असणार आहे इट इज अ पार्ट ऑफ दिस स्पेक्ट्रम. म्हणजेच ह्याच्यातले काही रेज जे आहेत दॅट विल बी ट्रीटेड ॲज अ लाईट. पण ह्या बाकीच्या रेज मध्ये आणि ह्या व्हिजिबल रेज मध्ये, व्हिजिबल का, कारण हेच फक्त व्हिजिबल आहेत आपल्या आईजला, हे बाकीचे व्हिजिबल नसणार आहेत, राईट. म्हणून लाईटला काय म्हटलंय, लाईट is nothing but the visible rays that human eye can see, and it is a part of electromagnetic spectrum. These rays ranges from, म्हणजे ह्या रेंज मधले जे काही रेज असतील 400 नॅनोमीटर टू 750 नॅनोमीटर मधले जे काही रेज असतील दोज रेज आर विजिबल. आणि ते म्हणजेच ह्या रेंज मधले जे काही रेज असणार आहे ते म्हणजे तुमचे लाईट असणार आहे, राईट. लाईट जे आहे इट हॅज डिफरंट फीचर्स ॲज आय सेड. रिफ्लेक्शन, शॅडो, रिफ्रॅक्शन. जेव्हा लाईट कुठल्याही एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती पडते, राईट, तेव्हा तो ऑब्जेक्ट काय करणार आहे, दॅट ऑब्जेक्ट कॅन इमिट द लाईट, म्हणजे इमिशन, कॅन ऍब्सॉर्ब द लाईट, ऍब्सॉर्प्शन, और लाईट जे असणार आहे दॅट माइट बाउन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पासून परत रिफ्लेक्ट होऊ शकते, राईट, ती लाईट म्हणजे रिफ्लेक्शन. किंवा दॅट लाईट मे पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, म्हणजेच ट्रान्समिशन और रिफ्रॅक्शन. ठीक आहे. मग हे का सांगतेय, कारण कलर जो असणार आहे, कलर म्हणजे काय, कलर इज व्हॉट द आय सी व्हेन द लाईट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ अन ऑब्जेक्ट. जेव्हा ऑब्जेक्ट पासून लाईट रिफ्लेक्ट होते आणि आपल्या डोळ्यात जाते तेव्हा आपल्याला जे काही दिसणार आहे त्या ऑब्जेक्ट जो दिसेल तो म्हणजे त्याचा कलर तुम्ही म्हणू शकता. आता सध्याला एवढंच लक्षात ठेवा की कलर इज व्हॉट, पुढे अजून सांगितल्यावर लक्षात येईल. कलर इज व्हॉट, इट इज व्हॉट द आय सी व्हेन द लाईट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ अन ऑब्जेक्ट. मग फक्त लाईट ऑब्जेक्ट वर पडली आणि ती रिफ्लेक्ट झाली म्हणजे आपल्याला कलर जो आहे तो दिसेल का ऑब्जेक्टचा, तसं नाहीये. तर त्या ऑब्जेक्टचा कलर हा कशावर अवलंबून आहे की जी लाईट आहे ती जेव्हा ऑब्जेक्ट वर पडेल, तर असं पण होऊ शकेल की दॅट ऑब्जेक्ट कॅन ऍब्सॉर्ब द लाईट, काही लाईट ऍब्सॉर्ब करू शकेल किंवा काही लाईट काय म्हणता येईल इमिट करेल, किंवा मे बी ती लाईट पूर्णपणे बाउन्स होईल म्हणजे रिफ्लेक्शन होईल, राईट. म्हणजे जो कलर असणार आहे जो आपल्या आईजला दिसणार आहे दॅट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाईट बट ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन what wavelength is absorbed, what wavelength is absorbed by an object or reflected by the object, right. थोडंफार समजतंय? Yes, ma'am. हा, मी म्हणत नाही पूर्ण अगदी, पण थोडंफार तरी ऍटलिस्ट, राईट. आता जो कलर आपल्याला ऑब्जेक्टचा दिसणार आहे दॅट कलर हॅज द 3 प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज ह्यू. ह्यू इज नथिंग बट द नेम ऑफ द कलर, म्हणजे कलर इट सेल्फ, नेम ऑफ द कलर. मग तो कलर कुठलाही असेल, इट मे बी रेड, ब्ल्यू, येलो, कुठलाही. सो ह्यू जेव्हा मी म्हणेल दॅट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द कलर. सो ह्यू इज द, शॉर्ट मध्ये तुम्ही सांगू शकता ह्यू इज नेम ऑफ कलर. सेकंड, व्हॉट इज सॅच्युरेशन. जसं लाईटच्या मी प्रॉपर्टीज सांगितल्यात तसंच ह्या कलरच्या 3 प्रॉपर्टीज आहेत. फर्स्ट इज ह्यू, दॅट इज द नेम ऑफ द कलर. Second is saturation, that indicates how pure color should appear. It is decided by the saturation. म्हणजेच काय, purity of color is decided by the saturation. आता purity of color म्हणजे काय हे कळतंय ना. तर रेड कलर मी जर म्हटलं ह्यू, म्हणजे समजा जर मी रेड कलर घेतला तर प्युरिटी ऑफ दॅट कलर म्हणजे रेडच्या पण वेगवेगळे शेड्स असू शकतील, राईट. ठीक है. हिंदी क्या बोल रहे हो आप लोग, मराठी नहीं समझ में आ रहा ना सौरभ? ठीक है.
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो अभी तक जो बताया मैंने लाइट, वो समझ में आया? लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। देन कलर, व्हाट इज कलर, वो समझ में आया? नाउ कलर, it has the three properties. Hue, first is hue, that indicates the name of the color, right? Saturation is the second property that indicates purity of color. Purity of color, ये भी एक्सप्लेन करना, ये समझ में आ रहा है? Saturation indicates purity of color. जैसे कि मैंने बोला रेड कलर अगर कंसिडर करते हो तो उसके भी बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं, राइट? तो ब्राइट रेड, एकदम से ब्राइट रेड रहेगा तो प्यूरिटी ऑफ दैट कलर, वो कितना प्योर है। तो डल रेड भी हो सकता है, ब्राइट रेड भी हो सकता है, इन बिटवीन और कुछ शेड्स भी हो सकते हैं रेड के। तो हाउ, व्हाट प्यूरिटी ऑफ दैट कलर इज डिसाइडेड बाय द सैचुरेशन। अभी समझ में आ रहा है? प्यूरिटी ऑफ कलर, so purity of color is decided by the saturation. Now third property is value. Value, you can say it is the lightness or darkness of color. In short, और आप लोग उससे ब्राइटनेस या इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, राइट? ब्राइटनेस ऑफ और डलनेस ऑफ ह्यू, इट इज डिसाइडेड बाय द इंटेंसिटी, राइट? वैल्यू, इट इज रिलेटेड टू ब्राइटनेस और इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। सो वैल्यू ये इंडिकेट क्या करता है? इट इंडिकेट्स द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर, राइट? सो जो भी ब्राइटनेस है या फिर डार्कनेस है या फिर डलनेस है, इट इज डिसाइडेड बाय द इंटेंसिटी। तो इन शॉर्ट यू कैन कंक्लूड, अगर वो कलर प्योर है, मतलब प्योर कलर है, तो द प्योर कलर्स आर हाई इंटेंसिटी कलर्स, एंड डल जो रहेंगे, डल ह्यूज मतलब डल कलर जो रहेंगे, दैट आर लो इंटेंसिटी कलर्स। ठीक है, इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं, राइट? समझ में आ रहा है अभी ये? क्यों समझ में आया? दैट इज द नेम ऑफ द कलर, सैचुरेशन, द प्योरिटी ऑफ कलर इंडिकेट करता है, वैल्यू दैट इंडिकेट्स द ब्राइटनेस और डलनेस और लाइटनेस, यू कैन से लाइटनेस, डार्कनेस, डलनेस, जो भी है इट इज डिसाइडेड बाय द वैल्यू। तो प्योर कलर जो रहेंगे दैट आर हाई इंटेंसिटी रहेगी, हाई इंटेंसिटी कलर्स, और जो डल कलर्स है दैट आर लो इंटेंसिटी colors, right? And when hue and saturation, both these terms, when you use both these terms collectively, it is called chromaticity. ठीक है, जब ये टर्म्स ह्यू मतलब नेम ऑफ द कलर एंड सैचुरेशन मतलब जहां पर भी नेम ऑफ द कलर, सपोज मैंने कंसिडर किया रेड, इफ यू डिस्क्राइब द रेड अलोंग विथ इट्स प्योरिटी, राइट? तो मतलब along with purity, तो ये क्या हुआ? नेम ऑफ द कलर इज hue and purity of color is decided by the saturation. तो जब मैं ये टर्म्स जैसे कि कलर, और वो कलर कितना प्योर है, राइट? तो अगर ये दोनों एक साथ डिस्क्राइब करती हूं, दैट मीन्स व्हेन यू यूज these two terms hue and saturation collectively to describe the color, so it is called as chromaticity. Chromaticity समझ में आ रहा है? What is chromaticity? रेड कलर है, अगर रेड कलर आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, लेकिन वो कितना प्योर है, मतलब थोड़ा सा फेडेड की तरफ जा रहा है, या फिर ब्राइट ब्राइट रेड है या प्योर रेड है। थोड़ा रेड में अगर थोड़ा ब्लैक मिक्स करते हो, ग्रे मिक्स करते हो, तो उसका कलर थोड़ा डल हो जाएगा। तो प्योरिटी ऑफ दैट रेड इज डिसाइडेड or you can describe in terms of saturation. So when hue and saturation, not necessary red, hue क्या indicate करता है? name of the color, कौन सा भी कलर हो, वो कलर कितना प्योर है,
it is described by saturation. So ये both the terms when you use collectively it is called as chromaticity. Chromaticity क्या है समझ में आ रहा है अभी? थोड़ा थेरी पार्ट है तो थोड़ा सा आपको लगेगा, ये थोड़ा फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो थोड़ा लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन एक दो बार अगर पढ़ोगे तो वो और समझ में आ जाएगा. ठीक है, अभी नेसेसरी नहीं है सब कुछ समझ में आए. एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ह्यू क्या है ये समझ में आना चाहिए. सैचुरेशन क्या इंडिकेट करता है, व्हाट इज वैल्यू, ये क्या इंडिकेट करता है, अभी इस लेवल पे इतना भी समझ में आया तो भी चलेगा. क्रोमेटिसिटी क्या है कि व्हेन यू एंड सैचुरेशन बोथ टर्म्स अगर एक साथ यूज कर रहे हो तो इट इज क्रोमेटिसिटी, राइट. अभी इसके रिलेटेड ही नेक्स्ट टर्म है दैट इज क्रोमेटिसिटी डायग्राम. अब ये क्या है? तो क्रोमेटिसिटी की तो अभी मैंने जो डेफिनेशन बताई, राइट, तो ये तो ठीक है. इट इज ए टेक्निकल वर्ड्स में क्या है, ह्यू एंड सैचुरेशन कलेक्टिवली टुगेदर कॉल्ड क्रोमेटिसिटी. अभी ये जो क्रोमेटिसिटी डायग्राम जो रहेगी, व्हाट इट इंडिकेट्स, इट रिप्रेजेंट्स द ऑल पॉसिबल कलर्स that human eye can perceive, मतलब that is visible to human eye, that human eye can perceive, right. तर अभी ये जो क्रोमेटिसिटी डायग्राम है ये कैसे निकाली है ये आप लोगों को बताती हूँ और बाद में फिर से एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या है. यहाँ पर है सपोज योर आइडियल रेड, यहाँ पर है योर आइडियल ब्लू एंड दिस इज योर आइडियल ग्रीन. और अगर ये डायग्राम निकालते हो तो उसका शेप आएगा, दिस इज, यू कैन से इट इज लाइक टंग शेप डायग्राम. ठीक, डायग्राम दिख रही है. तो अभी ये जो है डायग्राम, पूरी डायग्राम, ये जो है टंग शेप एरिया, इट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिसिटी डायग्राम, राइट. तो अभी ये आई कैसे, तो कि सम series of experiments जो है that are done by some scientist, okay, and the results of their experiment जो है it is combined with this RGB color space, and using some equations they find out the values of x and y coordinates and plotted this diagram using those coordinates, right. समझ में आ रहा है सौरभ? तो क्रोमेसिटी डायग्राम क्या है, तो ये कैसे आई है मैंने बताया कि सम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है दैट वर डन बाय सम साइंटिस्ट, राइट, एंड उस एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट्स है दैट दे कंबाइन विद दिस आरजीबी कलर स्पेस and there were some equations and using those equations they find out these values of x and y. अभी ये डायग्राम निकालने के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो लगेंगे ना, ये टंग शेप एरिया निकालने के लिए. तो यूजिंग सम इक्वेशंस दे फाइंड आउट दिस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एंड प्लॉटेड दिस डायग्राम यूजिंग दोस कोऑर्डिनेट्स, राइट. तो ये जो मिल रहा है टंग शेप diagram, it is a chromaticity diagram, and what it indicates all possible colors. इस एरिया में, इस टंग शेप एरिया में जितने भी कलर्स आएंगे, it indicates all those colors that can be perceived by human eye. म्हणजेच काय, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि इस एरिया में जितने भी
कलर्स रहेंगे, ऑल दोज कलर्स आर विजिबल टू ह्यूमन आई। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑन दिस बाउंड्री, इस बाउंड्री पे जो भी पॉइंट्स है, इस टंग शेप एरिया के बाउंड्री पे जो भी पॉइंट्स रहेंगे, राइट, सपोज यहाँ पर मैंने लिखा वॉयलेट और यहाँ पर लिखा रेड, यहाँ पर और एक कुछ है कलर येलो। तो इस बाउंड्री पे जितने भी कलर्स रहेंगे, द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स प्योर कलर। ठीक है, इस बाउंड्री पे जितने भी कलर्स रहेंगे, ऑल दोज कलर्स आर प्योर कलर। समझ में आ रहा है, मतलब हाई इंटेंसिटी कलर, प्योर कलर, उसमें कुछ मिक्स नहीं किया है दूसरा कौन सा भी कलर, राइट। एंड द व्हाइट कलर जो है, इट इज एट द सेंटर। व्हाइट कलर जो है, इट इज एट द सेंटर। अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन, इफ यू जॉइन दिस लाइन, ठीक है, अगर ये लाइन ज्वाइन करते हो तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, राइट, एंड ऑल दीज पॉइंट्स indicate different colors, and those different colors can be achieved by mixing of this red and violet। मतलब कॉर्नर पे, एंड पॉइंट पे जो भी कलर्स रहेंगे, जो भी टू कलर्स रहेंगे, you can achieve all possible colors along this straight line by combining those two colors। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये पॉइंट मतलब, ये पॉइंट अभी किसके नजदीक है, वॉयलेट, तो यहां पर यू कैन से कि ऐसी शेड रहेगी दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वॉयलेट। जैसे जैसे आप इस वॉयलेट में, इस शेड में जैसे जैसे रेड ऐड करते जाओगे, उसकी शेड चेंज होते जाएगी 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 जाएगी, फाइनली यहां पर जो कलर मिलेगा दैट इज क्लोज टू रेड। और अगर रेड ऐड करते जाते हो तो फाइनली यहां पर जो कलर मिलेगा वो रेड रहेगा। अभी समझ में आ रहा है। अगर इस तरफ जा रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो दैट शेड विल बी क्लोजर टू रेड कलर। अगर नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हो तो दैट शेड विल बी क्लोजर टू वॉयलेट कलर। समझ में आ रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग, नॉट नेसेसरी ये कौन से भी लाइन देखो, ये लाइन देखते हो, यहां पर जो भी कलर होगा एंड पॉइंट पे, यहां पर जो भी कलर होगा, तो अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन जो भी कलर्स रहेंगे, दैट कलर्स यू कैन अचीव बाय मिक्सिंग दिस टू कलर्स। बट ऑफ कोर्स डिफरेंट शेड के लिए यू विल रिक्वायर टू चेंज द अमाउंट ऑफ दिस कलर्स, उसका प्रोपोर्शन भी अलग रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, अभी इसकी तरफ जा रहे हो तो रेड ज्यादा रहेगा, वॉयलेट कम रहेगा, राइट। अगर नीचे की तरफ आ रहे हो तो वॉयलेट कलर कम, वॉयलेट ज्यादा रहेगा, रेड कलर थोड़ा कम रहेगा। तो ये समझ में आ रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन मैंने क्या बताया, ठीक है। एवढं कळलं ह्या डायग्राम मध्ये, क्रोमॅटिसिटी डायग्राम इतना समझ में आया क्या है अभी ये, Yes, ma'am. ठीक है। और इसमें ही अगर मैंने, राइट, ठीक है, ये क्रोमैटिसिटी डायग्राम है। व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल कलर्स दैट इज विजिबल और दैट आर विजिबल टू ह्यूमन आई, राइट। तो इसमें अगर मैंने सपोज जैसे कि बताया, अलोंग द स्ट्रेट लाइन अगर कंसिडर करते हो तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी कलर्स आएंगे, दैट कलर्स यू कैन अचीव बाय कंबाइनिंग दिस टू एंड कलर्स। वैसे ही अगर मैंने ऐसे तीन कलर्स लिए, राइट, और ऐसे ट्रायंगल बनाया, तो जो भी एरिया एनक्लोज होगा, व्हाट इट इंडिकेट्स, यहां पर जो बताया सेम, दिस एरिया
indicates all possible colors that can be made by mixing these three colors in the corner. And of course, along the edge अगर consider करते हो तो यहाँ के कलर्स कैसे मिलेंगे? बाय मिक्सिंग दिस टू कलर्स. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. अगर ये एज कंसिडर करते हो तो अलोंग दिस एज जो भी कलर्स रहेंगे, हाउ यू कैन अचीव दोज कलर्स? बाय कंबाइनिंग दिस कलर एंड दिस कलर. और एरिया में, इस एरिया में जो भी कलर्स आएंगे that you can achieve by mixing these three colors 1, 2 and 3. ठीक है, यहां तक समझ में आया? Yes, ma'am. So this is, as I said, परत एकदा, this is short मध्ये काढले, this is chromaticity diagram. It represents, what it represents? All possible colors that human eye can see, right? लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? जो भी डिस्प्लेज रहते हैं, लाइक टीवी हो या फिर कंप्यूटर का हमारा मॉनिटर हो, राइट? द मॉनिटर जो रहेगा कंप्यूटर का, इट कैनॉट डिस्प्ले, मैं क्या बता रही हूँ, कंप्यूटर का जो मॉनिटर रहेगा, इट कैनॉट डिस्प्ले ऑल दीज कलर्स दैट आर विजिबल टू ह्यूमन आई. एक्चुअली ये टंग शेप डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे कलर्स कि जो हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो मॉनिटर है वो इसे सपोर्ट नहीं करता है. इट डज नॉट सपोर्ट और इट कैनॉट डिस्प्ले ऑल दीज कलर्स दैट ह्यूमन आई कैन सी, राइट? तो उसकी वजह से मॉनिटर जो है, इट सपोर्ट्स, what you can say, it supports only this much colors, and these colors can be generated by using three primary colors: red, green and blue, RGB. so monitor जो रहेंगे या फिर टीवी या फिर कंप्यूटर मॉनिटर जो है, that use three different colors, that is red, green and blue, to generate all these that can be displayed, right? एक्चुअली ये पूरे डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हम इतने सारे कलर्स विजिबल है या फिर हम देख सकते हैं, लेकिन जो मॉनिटर रहेगा ये सपोर्ट नहीं करता है. इट कैन नॉट डिस्प्ले ऑल द कलर्स. तो उसमें से it will display only this much amount of colors, और these colors जो रहेंगे that can be generated by using these primary colors, three basic colors, red, green and blue. so ये जो एरिया है इसे कहते हैं RGB color gamut. RGB color gamut. So what is color gamut? Color gamut काय म्हणू शकता तुम्ही? What you can describe that color gamut as? It is a range of colors that output device can display, right? Output device मतलब कौन सा भी हो सकता है. It can be a TV, monitor हो सकता है, right? So color gamut, this color gamut क्या डिस्क्राइब करता है? इट इज द रेंज ऑफ द कलर्स और ऑल पॉसिबल कलर्स दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड ऑन एन आउटपुट डिवाइस. मतलब आउटपुट डिवाइस पे इतने सारे कलर्स, इस एरिया में जो भी कलर्स रहेंगे, कलर गैमेट में जो भी पूरे कलर्स आएंगे, दैट कलर्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर और दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड ऑन अ आउटपुट डिवाइस. कलर गैमेट डिस्क्राइब्स द रेंज ऑफ द कलर्स. ठीक है? एंड व्हाई आरजीबी कलर गैमेट? तो ये जो कलर्स रहेंगे, those all colors are generated by using these three primary colors R, G and B.
एक पर्यंत यहाँ तक समझ में आया? इतने टर्म्स जो भी बताया मैंने Yes, ma'am. कळतंय? म्हणजे मेन बेसिक डिफरेंस अभी समझ में आया? क्रोमेटिसिटी डायग्राम क्या रहेगा? ऑल पॉसिबल कलर्स दैट ह्यूमन आई कैन सी, राइट? लेकिन उसमें से पूरे कलर जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं हो सकते, तो मॉनिटर क्या करेगा? उसमें से कुछ पोर्शन मतलब कुछ कलर्स ही डिस्प्ले करेगा, और वो जो कलर्स रहेंगे दैट आउटपुट डिवाइस कैन रिप्रोड्यूस, दैट इज नथिंग बट द कलर गैमेट। और उसे आरजीबी कलर गैमेट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो ऑल पॉसिबल कलर्स है that output device can display, those colors are generated with the help of these three colors R, G and B. ठीक है, so these are the primary colors and center पे as I said it is the white, right? यहाँ पे होगा white point, मतलब that white point it is a mixture of what? R, G and B, but RGB in a equal amount, right? When we mix these two colors we get secondary colors. ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस मैम। थोड़ा फार समझते हैं? थोड़ा बहुत समझ में Yes. आया ना? ठीक है ना? नेक्स्ट कलर मॉडल, और नेक्स्ट इज कलर मॉडल। तो कलर मॉडल क्या करेगा? इट विल क्रिएट रेंज ऑफ द कलर्स फ्रॉम सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर देखा कलर गैमेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल पॉसिबल कलर्स विद इन दिस एरिया ये जनरेट कर सकते हैं, राइट? विद द हेल्प ऑफ थ्री प्राइमरी कलर्स। तो कलर मॉडल क्या करेगा? वही करेगा, इट विल जनरेट और इट इज अ सिस्टम टू क्रिएट दोज रेंज ऑफ कलर्स with the help of primary colors. So there are some popular color models, right? First is RGB color model, second is CMY है color model, third one is HSVB है, HSL है। ठीक है, तो उसमें से पहले we will go through the RGB color model, right? तो RGB color model जो है it is a additive color model. Additive color model because it adds red, blue and green to produce this wide range of colors or this range of colors. ठीक है, तो RGB क्यों कहा जा रहा है और उसे एडिटिव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो भी कलर्स यहाँ पर जनरेट होंगे that colors can be generated using these three primary colors, or it will add these three colors red, blue and green to produce these colors, right? तो RGB कलर जो मॉडल है it is used to define the colors in, as I said, मॉनिटर में या फिर टीवी हो या फिर आपका मोबाइल फोन हो या फिर वीडियो प्रोजेक्टर हो, वहां पर RGB कलर मॉडल यूज होगा। मतलब जहां पर भी सिर्फ डिस्प्ले का काम हो रहा है, सिर्फ डिस्प्ले एंड डिस्प्ले करना है, वहां पर RGB कलर मॉडल यूज होगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? इट कैनॉट बी यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग। यहां पर एक्चुअली इमेज पे काम करना है, जहां पर आपको ब्राइटनेस चाहिए या फिर ल्यूमिनेंस, ऐसे टर्म्स है, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। लेकिन जहां पर भी इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग अगर कुछ करना है तो वहां पर ये कलर मॉडल यूज नहीं होगा। सिर्फ जहां पर डिस्प्ले का काम हो रहा है वहीं पर ही यू कैन यूज RGB कलर मॉडल। लाइक जैसे बताया, मॉनिटर हो या फिर मोबाइल फोन हो आपका या फिर प्रोजेक्टर हो या फिर टीवी हो, राइट? तो ये जो मॉडल है एडिटिव क्यों कहा, समझ में आया? रेंज ऑफ कलर्स कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री कलर्स, राइट? कहां पर यूज हो रहा है मैंने बताया, जहां पर सिर्फ डिस्प्ले का काम हो रहा है। तो डिस्प्ले डिवाइस मतलब कौन कौन से है दैट यू कैन नोट डाउन? टीवी हो, मॉनिटर हो, मोबाइल फोन, वीडियो प्रोजेक्टर। कैनॉट बी यूज्ड इन अ इमेज प्रोसेसिंग। जहां पर भी इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग हो रहा है वहां पर नहीं होगा, वहां पर नेक्स्ट
It is a device dependent model. Device dependent. डिवाइस डिपेंडेंट मॉडल है, क्योंकि जो आरजीबी के जो भी लेवल्स रहेंगे दैट विल बी यू कैन से इट विल वेरी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, राइट। जैसे कि मोबाइल फोन में अगर आप लोग एक किसी के मोबाइल फोन में अगर ड्रेस का कलर देखते हो रेड है या फिर ब्लू है, दूसरे के मोबाइल में अगर वही कलर चेक करने जाते हो तो ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा और डार्क ब्लू दिखे। तीसरे किसी और के मोबाइल में हो सकता है कि वो थोड़ा फेडेड दिखे। तो वेरिएशंस जो ब्लू कलर में वेरिएशंस है वो माइन्यूट वेरिएशंस हो सकते हैं। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरर। सो इट इज अ डिवाइस डिपेंडेंट मॉडल। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? यस मैम। करते हैं ना? ठीक है। तो एक्चुअली अभी ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आरजीबी मॉडल जो है, आरजीबी रिप्रेजेंट थ्री एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो डायग्राम मेरा इतना परफेक्ट नहीं रहेगा, तो ये जो है आरजीबी थ्री एक्सिस मतलब क्यूब निकालना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा अभी ये समझ के ले लो डायग्राम, ठीक है। इतना परफेक्ट नहीं आएगा। हम्म अभी सिर्फ एक मॉडल के लिए डायग्राम निकाल रही हूँ, नेक्स्ट मॉडल के लिए डायरेक्टली डायग्राम दिखा दूंगी। अभी ये क्यों निकाल रही हूँ, तो अगर ये समझ में आता हो आगे का भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, डायरेक्टली अगर डायग्राम दिखाए तो भी। क्यूब दिख रहा है? सो दिस रिप्रेजेंट आर रेड कलर, राइट। एक्स एक्सिस यहां पर होगा रेड, राइट, रेड। तो उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एक्स एक्सिस पे है तो एक्स फर्स्ट 1, देन वाई नहीं तो 0, जेड 0, राइट। यहां पर होगा ग्रीन कलर along the y axis, this is green, तो उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 मतलब x y पे है ना, तो y is 1, z is 0। यहाँ पर रहेगा ब्लू, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग बताओ along the z axis क्या रहेंगे? 0, हम्म 0, 1. वेरी गुड, 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रहेगा दिस इज व्हाइट कलर, right? So white can be generated by the combination of this red, green and blue, equal amount, full intensity। तो 1 1 1। यहाँ पर जो आएगा साइन कलर आएगा, यहाँ पर येलो कलर है, यहाँ पर ब्लैक है एट द ओरिजिन, राइट, एंड यहाँ पर है, यहाँ पर जो रहेगा दैट इज मैजेंटा कलर रहेगा। ठीक है, तो एज आई सेड आर G and B represents three axes X, Y and Z, right? ये जो ब्लैक कलर है तो ये कैसे आएगा? इंटेंसिटी ऑफ रेड R, G and B शुड बी 0, मतलब रेड 0 रहेगा, ग्रीन भी 0 रहेगा, ब्लैक भी 0 रहेगा। तो RGB अगर ऐड करते हो लेकिन विथ वैल्यू 0 या फिर 0 इंटेंसिटी, तो इट विल प्रोड्यूस ब्लैक कलर। और वही आरजीबी अगर ऐड करते हो, तीनों भी ऐड करते हो विथ फुल इंटेंसिटी, सो दैट विल प्रोड्यूस व्हाइट कलर 1 1 1। यहां पर रहेगा 0 0 0। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन है अलोंग ब्लैक लाइन है, इसे कहेंगे इट इज अ ग्रे स्केल, ग्रे स्केल।
राइट। तो ये ग्रे स्केल क्यों कहा जा रहा है? तो आर जी बी, मैंने क्या बताया, अगर ये 0 0 0 तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ब्लैक कलर, 1 1 1 फुल इंटेंसिटी व्हाइट कलर। तो अगर आप लोग आर जी बी ऐड करते हो, तीनों भी मिक्स करते हो, लेकिन विद इन द रेंज 0 to 1, मतलब यहां पर मैंने आर लिया इन प्रोपोर्शन 0.5, यहां पर ग्रीन भी लिया इक्वल प्रोपोर्शन 0.5, यहां पर भी लिया 0.5, तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ग्रे शेड। ठीक है, तो फिर से अगर मैंने ये प्रोपोर्शन चेंज किया, 0.8 लिया, ये भी 0.8, ये भी 0.8, सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ग्रे शेड। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें थोड़ा सा 0.8 प्रोपोर्शन बढ़ा दिया है, तो इसमें से थोड़ा ग्रे टुवर्ड्स व्हाइट, तो ग्रे कलर कम रहेगा। जैसे जैसे व्हाइट की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे ग्रे शेड कम होता जाएगा, जैसे जैसे ब्लैक की तरफ आओगे ग्रे शेड ज्यादा होता जाएगा, और फाइनली इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ब्लैक कलर। समझ में आ रहा है? तो इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ दिस थ्री कलर्स, so equal proportion of these three colors between 0 and 1 will produce the gray shade, so that's why it is a gray scale. समझ में आ रहा है what I said? Equal proportion of this red, green and blue between, equal भी चाहिए, R जितना ले रहे हो उतना G भी चाहिए, उतना ब्लू भी चाहिए, लेकिन विद इन द रेंज, कौन से? विद इन 0 and 1, तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ग्रे शेड, राइट। डायग्राम में क्या क्या एक्सप्लेन करना है समझ में आ रहा है? आरजीबी कलर मॉडल, एक्सेस कौन कौन से है, उसके कोऑर्डिनेट्स, राइट। एडिटिव कलर मॉडल है, कहां पर यूज है, देन व्हाट इज राइट, एंड इसमें ही ये जो साइन मेजेंटा एंड येलो है, दीज आर द कलर्स। बाय कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहेंगे? व्हेन टू कलर्स आर कंबाइंड, when you combine the two colors in a right proportion, and if they are going to produce a neutral color म्हणजे white color, तो complementary colors। समझ में आ रहा है? complementary colors, अगर ऐसे दो कलर्स आप लोगों ने लिए, कि जो दो कलर आप लोग अगर ऐड करते हो, एंड ऐड करने के बाद इफ इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ व्हाइट कलर, देन दैट पेयर ऑफ कलर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो रेड एंड cyan, magenta, blue and yellow, these are the complementary colors। क्यों complementary? क्योंकि when you add red and cyan together in an equal amount, it is going to produce which color? Which color it is going to produce? White. White color. White color. Correct. When you add green and magenta in equal amount, it is going to produce white color. Blue and yellow अगर add करते हो तो equal amount में it is going to produce white color. So all this, so red and ये green and magenta, blue and yellow, these are the complementary colors. लक्षात आलं complementary colors कोणाला म्हणायचं? Yes, ma'am. तो अभी तक जो भी बताया वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, राइट। हमने क्या क्या देखा है? व्हाट इज लाइट, लाइट क्या रहेगी, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, राइट। देन व्हाट इज कलर, कलर इज व्हाट ह्यूमन आई कैन सी व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। सिर्फ लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा कलर, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट भी रहेगा कि व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, और व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इमिटेड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। देन कलर के थ्री प्रॉपर्टीज देखे, ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। ह्यू क्या है? नेम ऑफ द कलर। सैचुरेशन क्या इंडिकेट करता है? प्यूरिटी ऑफ कलर। वैल्यू इंडिकेट करता है ब्राइटनेस और डलनेस और lightness. Then chromaticity diagram देखा है। In one line you can say that chromaticity diagram is the all possible colors that human eye can perceive.
तो अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन कलर्स कैसे जनरेट करते हैं ये भी देखा है, राइट? ये ट्रायंगल अगर रहता है तो ये भी क्या डिनोट करता है कि इस रेंज में जितने भी कलर्स रहेंगे दैट कैन बी जनरेटेड यूजिंग दिस 3 कलर्स, राइट? तो ये जो होता है पोर्शन उसे हम कहते हैं कलर गैमेट। मतलब क्या कि ये जो कलर्स है दैट कैन बी produced by an output device by the combination of which colors? RGB. So that's why it is RGB color gamut. Now there are different color models, ठीक है? RGB, CMY, HSV और भी है, HSL भी है। तो RGB क्या है? हमने देखा है एडिटिव कलर मॉडल है, राइट? कहाँ पर यूज होगा? जहां पर सिर्फ डिस्प्ले होगा। इट इज अ डिवाइस डिपेंडेंट। ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी देखा। हाउ टू प्रोड्यूस ब्लैक, व्हाइट, ग्रे स्केल, राइट? देन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या है, प्राइमरी कलर्स कौन सा है, राइट? याच्यामध्ये काय डाउट? इसमें कुछ डाउट? कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? थोड़ा बहुत, मैं नहीं बोल रही 100%, लेकिन एटलीस्ट कंसेप्ट थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है ना? ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। टुमारो वी विल गो थ्रू रिमेनिंग 2 और 3 जो भी है, थोड़ा फास्ट लेंगे। CMY कलर मॉडल है, HSL है और HSV है। The 3 models we will cover in tomorrow's lecture. ठीक है? Now we will stop here.